जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला वर्सेस राहुल गांधी कास्ट के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। No, what the BJP has been trying to do when it removes references to caste discrimination in NCERT books, when Dalit writers are removed from the courses of Delhi University, when you talk about 400 Par, for what reason we don't know. Maria, this is the problem. While Congress focuses on narrative, we focus on doing things with niyat. Today is not just Valmiki Jayanti, it also happens to be the unfortunate day when 1 hour ago, Captain Ajay Yadav, the National OBC chairperson of Congress, has called it quits from the Congress party. The last time this happened, we know that Sitaram Kesi, one of the OBC presidents of Congress, the only last one, how he was treated. Congress is essentially a party that talks about Dalit but wants Dal Hit. And for Dal Hit, it does Dalit and OBC ka apman constantly. Let me give you examples. First of all, this Arakshan reservation. 1961, Nehruji has written categorical letter that I would not want reservation. It creates second-class people. 1980 to 90, Rajiv Gandhi and Indira Gandhi opposed Mandal. Rajiv Gandhi said, Buddu ko Arakshan milta hai. 2004 to 14, Jamia AMU used to have SC/ST Arakshan. It creates second-class people. 1980 to 90, Rajiv Gandhi and Indira Gandhi opposed Mandal. Rajiv Gandhi said, Buddu ko Arakshan milta hai. 2004 to 14, Jamia AMU used to have SC/ST Arakshan. It was finished off. We know that in Rangnath Mishra, they proposed that the SC/ST Arakshan should be given, part of it should be given to Muslims. We know that in Karnataka, they took off from the chunk of OBC Arakshan and gave it to the Muslims purely on religious grounds. They have done this in the past. Salman Khurshid also said, from 27% OBC quota, I want to give 9% to Muslims before the UP elections. Look at what they did in the Haryana elections. They insulted Kumari Shelja. And when it came, first Rahul Gandhi went abroad and he said, Arakshan khatam kar denge hum log. And then they said, Dalit netutva khatam kar denge, the manner in which they treated Kumari Shelja. Forget everything else. You're showing visuals, Maria. Today's visuals, this is Rahul Gandhi with the people who have come to meet him. Camera person, can you please zoom? Ambedkar ji's portrait has been kept on the ground. This is the way they treat. And Ambedkar ji was defeated twice by the Congress party. Ambedkar ji was not given Bharat Ratna on time. Here, this is the picture. Rahul Gandhi is sitting, and here next to his feet, you can see Ambedkar ji's portrait. So therefore, Congress never respects Dalit, or a better word would be scheduled caste people. Look, let me give you another example. This entire narrative they have been doing in the entire Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan election. Rajasthan had maximum number of SC/ST atrocities. Then after that, those three elections they lost. Odisha, where there's a sizable tribal population, we won. Chhattisgarh, sizable tribal population, we won. We made a tribal CM. Today we are also winning Haryana elections. We have won many such state elections, and there we have made OBC people chief minister. They had opportunity. Telangana, they had promised Dalit Samaj, SC Samaj, that we will make chief minister. Instead, they make Revant Reddy, who had abused Kurmi caste. So this is the distance between narrative. You know, some people, they come, they wear muffler and they say hawa hai Congress ki, aandhi hai Congress ki, tsunami hai Congress ki, or some chaduri type people come and they make the mahol for Congress. ऐसे narrative से नहीं बनता. Avjit ji, just आप मुझे बता दीजिए, if the Congress respected the SC community, please just tell me, 70 years you had, why you did not make one OBC as the prime minister of this country who could complete his tenure? Okay. Deve Gowda ji was first OBC prime minister, but 3 times BJP has made. BJP in fact made OBC chief ministers like Kalyan Singh, Uma Bharti, when the Congress was opposing OBC rights. Okay. So therefore Congress should be the last person to preach. You remove NCERT, you remove references to discrimination, which means you're building ground. Since there was no caste, Dalits who've come out from the RSS ranks have spoken about the discrimination. Time and again, there is a war on the SC community. See, Maria, I always come prepared with my facts. This is the date 3/3/1985. आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दे सकते राजीव गांधी. It is published in Navbharat Times. Secondly, since he's talking about SC/ST funds, government has misused and diverted 37% of SC/ST funds in Karnataka, that is tune of 14,000 crores. Thirdly, I want to ask my friend, dear Mr. Avijit, that if you are so much for the rights of SC, why didn't you declare or even allow Kumari Shelja to fight? And fourthly, this is what Congress party used to say. Please listen. मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है, says आदरणीय इंदिरा गांधी जी. Is he now today discarding the views of Indira Gandhi ji? Of course, we want a casteless and a discriminationless society, but we are the ones who are doing it through empowerment. You are the ones who are doing it only through division of Hindu society. And by the way, Maria, you and I both know Pasmanda Samaj exists in Muslims also. It's not direct caste, but it is upper class, lower class. How many times Rahul Gandhi has spoken for the rights of Pasmanda? And Pasmandas face huge discrimination at the hands of Ashraf. You know it, how much they face the discrimination. All right. Has the Congress party ever spoken for Pasmanda? Okay. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो है ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप अपना राय व्यक्त कर सकें. तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला बात कर रहे हैं एक कांग्रेस प्रवक्ता के साथ. पहले शहजाद पूनावाला भी एक कांग्रेसी हुआ करते थे, इसलिए इनको भी बहुत पता है कांग्रेस की जो फितरत है. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की जो ये अजीबोगरीब नीति अभी 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद हुई है, वो अजीबोगरीब नीति और एक
षड्यंत्रपूर्ण नीति कि हिंदुओं का बंटवारा, हिंदुओं को जो बीजेपी ने 2014 से 2024 तक एक परोध के रखा था, एक एकजुट करके रखा था, कास्ट बैरियर्स को पूरी तरह लांग के हिंदुओं को एक साथ लगा के रखा था। और उसका परिणाम 2 इलेक्शन में बीजेपी को मिला और तीसरे इलेक्शन में हिंदुओं का जो कास्ट कॉन्शियसनेस है, कास्ट का जो एक जाति का जो एक प्रभाव है वो उनके दिमाग में ज़्यादा चलने लगा, तो फिर उनका बीजेपी का जो एक सीट शेयर था, जो उनके पास बहुमत आया था, वो नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा और बहुत इंजीनियस गेम प्लान खेला था कि हिंदुओं को हम कास्ट में बंटवाएंगे और हमारा जो स्पेशल कम्युनिटी है, शांति दूत, पीसफुल कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी, वो कम्युनिटी कुछ गलती नहीं कर सकता, उसको वोट करने के लिए एक मेंबर में बैठ के एक जो उनका एक रिलीजियस सरदार है वो बैठ के बोल देगा कि तुम इन लोगों के ऊपर वोट करो क्योंकि ये हमारे रिलीजन को बढ़ावा देते हैं और दूसरे के रिलीजियस फंक्शंस को रोक के रखते हैं, उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देते हमारे एरियाज़ में। और वो ऐसे लोग हैं जो अपने जहाँ वो रहते हैं उधर वो गेटो बना देते हैं और अपना एरिया को एक स्पेशल रिलीजियस एरिया बना देते हैं। एक स्पेशल देश तो ले लिया उन लोगों ने, पर तब भी उनको इंडिया के अंदर भी वो एक अपार्थाइड स्टेट बनाना है। उधर बस हमारे लोग जा सकते हैं और दूसरे के कम्युनिटी के लोग जाएंगे तो फिर हम पथराव करेंगे। उनका जब रिलीजियस बुत लेके, उनका आइडल लेके अगर हम गाना वाना गाएंगे तो फिर हमको बहुत गुस्सा आएगा और हम पत्थर मारने स्टार्ट कर देंगे। वो ऐसी कम्युनिटी का एकजुट होके वोट करते थे कांग्रेस को, और कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह इसके कारण 24 लोकसभा इलेक्शन में एक अच्छा खासा मेजॉरिटी मिला था, क्योंकि उन्होंने हिंदू, दलित और ओबीसी को बहुत, ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा कांग्रेस को मिल गया। अगर पूरा पूरा मिल जाता तो फिर बीजेपी तब भी गवर्नमेंट नहीं बनाती। इसलिए बहुत छटकाव हुआ है, पर अभी भी जो हिंदू वोट है वो बीजेपी के पास ही है। मुसलमान वोट तो करता ही नहीं है बीजेपी को। और कांग्रेस कभी भी जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनके अंदर जो डिनोमिनेशंस है, जो एक अलग आव है, उधर भी कास्ट्स हैं, उधर भी रिलीजियस टेंशन्स हैं डिनोमिनेशन में, पर उधर वो लगाते नहीं है ऐसे दरारें कांग्रेस वाले। बस हिंदुओं के ऊपर वो दरारें लगाते हैं कि तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम अनटचेबल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। यही बस जो हिंदू है उसके ऊपर लगाते हैं। और राहुल गांधी तो आपको पता ही है, अभी 24 के इलेक्शन के बाद उनका तो एक हर स्पीच में वो जाति 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 जाति, बस जाति ही जाति बोलते रहते हैं। और बहुत सारे मीम्स भी लगाए हैं बीजेपी के लोगों ने और जो राइट विंग वाले लोगों ने। उन्होंने बोला है कि ये जो राहुल गांधी है जहाँ भी जाता है, किसी के जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, इसके ऊपर भी कास्ट लेके आ जाते हैं। तो ये कभी मिस इंडिया कभी एक दलित बनी है, कभी एक ट्राइबल बनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ये और कास्ट में बंटवाता है। और उसको लगता है कि 24 इलेक्शन इसका जो 99 सीट्स आया है वो इसको खून लगा है ना। एक एनिमल होता है ना, जब शेर के पंजे में लग जाता है ना, एक उसकी बॉडी में एक खरोच आ जाता है तो फिर खून आने लगता है, तो फिर ये भेड़िए लोग जाते हैं, ये इनको देखने लगता है कि शेर अभी बहुत उसका इंजरी हो गया है, उसको नीचे गिरा के हम मार सकते हैं और खा सकते हैं उसे। यही कोशिश कर रहा है हिंदुओं के ऊपर राहुल गांधी। पर आपको तो पता ही होगा हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में बिल्कुल उल्टा हुआ कि हिंदू जो कास्ट में बटा हुआ था, सब लोगों को लग रहा था, उसको फिर से बीजेपी ने एकजुट होने का एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो कटोगे। ये 24 इलेक्शन के बाद ही हमको दिखाई दे गया बांग्लादेश में। उधर हिंदू बटे तो फिर कट गए,
उधर सारे के सारे जो मुसलमान हैं उन हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे उधर। और पाकिस्तान में भी यही है, बटोगे तो कटोगे। वेस्ट बंगाल में जहाँ भी मुस्लिम प्रभावित जगह हैं, जहाँ उनका एक शरिया कोर्ट्स भी बन चुका है औरतों को जस्टिस देने के लिए, वैसे जगह में भी आप रहोगे तो फिर बटोगे तो कटोगे। ऐसे ही इंडिया में जहाँ भी ऐसा इनका 30% तक पॉपुलेशन आ जाता है ना, इनका लगता है गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाता है। और हिंदू अपना जो रिलीजियस प्रोसेशन सिचुएशंस नहीं लेके जा सकता, वो सब कास्ट के लोग नहीं लेके जा सकते। तो फिर यही बात है, ये हिंदुओं को अभी भी अपना हिंदूनेस लेके आना चाहिए। और बीजेपी को भी पहले जो गेम खेलने की कोशिश की थी बीजेपी ने कि कास्ट में खेलेंगे, हम भी कांग्रेस के पिच में जाके खेलेंगे, उधर उसकी उन लोगों की पिच में जाके आप खेलोगे तो आप नहीं लड़ पाओगे। आपको जैसे इंडियन पिचेस में आप स्पिनिंग पिचेस बनाओ, ये फास्ट बॉलर्स के पिचेस नहीं बनाओ, ऐसे पिचेस बनाओगे तभी जाके होगा। और यही एक बहुत अच्छा वो होगा, जो उपाय होगा कि आप कास्ट में नहीं बंटवाओ, आप एकजुट रख के रखो हिंदुओं को, बटोगे तो कटोगे, यही है एक उपाय। और योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत कैची सा फेस दे दिया। अब महाराष्ट्र में भी यही बोलना चाहिए और झारखंड में भी यही बोलना चाहिए, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में भी यही बोलना चाहिए योगी आदित्यनाथ। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कास्ट तो खेलते रहेगा। हिंदुओं को एकजुट होके इस कास्ट के गेम को पूरी तरह उलट के जो मुसलमानों में जो कास्ट है उधर जाके दरार फेरना चाहिए, क्योंकि वो जब दरार फेरेगा तभी जाके मज़ा आएगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।